अग्रसर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी इस ह्यूमन स्किल के बारे में नॉलेज हो और आप लोग भी ह्यूमन स्किल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझें. So in few minutes, I think once our student participation crosses 200, we'll start the session. मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जो भी ये बता रहे हैं ये अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं. सो आप लोग इस अनुभव का सबसे ज्यादा लाभ लें. ये अनुभव का लाभ आप कैसे ले पाएंगे? कभी भी कोई अच्छा स्पीकर अगर आपको कोई बात बताता है तो पहले फेज में, तो पहले चरण में तो आप सिर्फ उस बात से कन्विंस होते हैं, या तो वो बात आपको अच्छी लगती है, राइट? पर अगर आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे उनको आप अगर नोट डाउन कर लेते हैं, उसके ऊपर बाद में आराम से सहूलियत से बैठ के अगर आप विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हेन आप उन स्किल्स को न केवल एडमायर करते हैं बट आप उन स्किल्स को एक्सेप्ट करके प्रैक्टिस करने लगते हैं. So my humble request to all the students is that kindly sit with a notepad and a pen, note down all the good skills that you learned today, and try to, when the session gets over, जब सेशन ओवर होता है तो आप उस पे थोड़ा विचार करें, उसको, उस जो नया स्किल सीखे हैं उसको अपनी लाइफ करेंगे तो ही ये जो आप 1 घंटे का समय दे रहे हैं Dr. Chirantan Bose is already with behalf of Vikrant Group of Institution. Am I audible to you? Sir, I think we have to make him co-host, I guess. He is host. He need to unmute himself. Okay. Dr. Bose, you need to unmute yourself. Dr. Bose, you need to unmute yourself. I think you're already the co-host. Yes, I can hear you. Okay, so that's great. So let me first introduce our guest speaker. He is Dr. Chirantan Bose, and he is an MBBS and MD. He did his MD from Gwalior, and that is how I think all of you should relate him, since the college is from Gwalior, and he had spent a considerable amount of time working with the MP belt in his initial years. He has worked in Indore, Gwalior, Bhopal, and thereafter he flew high. And he had a brief span of work at Jinan University also, where we had a very good interaction and we learned about each other a lot. And followed by that, he has been an internationally acclaimed and celebrated person in the field of cancer treatment and genomics. So a hearty welcome to you, sir. Thank you for your kind words. And So, I'm seeing a lot of people in the waiting this thing. So I think I have been made the host, so I'm admitting them all. Right. So that the technical team will take care. You need not to worry. So before we start the session, I would request our group director, sir, Dr. Satyanarayan A, to formally welcome the guest speaker to the session. So, Dr. Satyanarayan A. A minute. Good afternoon. Vikrant Pranam to all of you. On behalf of Vikrant Group of Institution, I welcome our guest speaker, Dr. Chirantan Bose, who is the director at Tata Cancer Genetics in Maharashtra. And he's very much very much attached to this MP. He's from the यहाँ का ही मिट्टी है, मतलब he's from Madhya Pradesh.
and he's going to enlighten us on human skills for corporate managers. And we're going to hear from a medical profession, which is very interesting because we always get look at corporate is from a perspective of engineer, or we always look at from an MBA background. So we're going to hear directly from a doctor. And in this, the pandemic, we're passing through, and very interesting to know and to invite you to Vikrant Group, sir. I welcome you on behalf of Vikrant Group Institution. I hand it over to you to take the session and enlighten us on human skills. Thank you so much, Dr. Satyanarayan. Thank you so much, Dr. Agashe, for inviting me. When Dr. Agashe actually spoke to me about this session, it was very interesting because since the lockdown, I have been talking about medical aspects and, treatment of cancer patients and how those things are getting delayed because of lockdown. People are facing problem in the treatment and all. So I thought this is a very good opportunity for me to interact with the students of your college who are going to join. I think these are freshers. And also I have, pursued a management program, an MBA from IIT Bombay. And it gives me a good opportunity, very happy opportunity to interface with management students and to share how I see management from a doctor's eye. And that is what is a small टॉपिक विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा. आप सब जो मैनेजमेंट स्कूल के छात्र बनने जा रहे हैं, आप देखेंगे और अनुभव करेंगे ये अपने करियर में कि किस तरह से जो ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आप पढ़ेंगे वो आपकी डे टू डे लाइफ और आपके विचारधारा से बहुत कई जगह आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने घर में भी ऐसा देखा है, या ये हमने अपने स्कूल में देखा है या कॉलेज में देखा है. तो थोड़ा हम इस चीज पे देखते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट की कई चीजें हमारे बिहेवियर पैटर्न से जुड़ी हुई हैं. तो सॉफ्ट स्किल और इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे. But let us just see. So I will try to see if I can share my screen and second. So, one second, I'll try to share the screen again. So you have to keep the window open, I mean the presentation open, and then yeah. I have been of course doing this, but somehow I'm not finding that file. Sorry for the hold up. I'm just somehow the screen sharing option is not working. What I'll do is that I will can you take back the presenter rights from me and try to give it again? Yes. Sometimes it just gets stuck. Ma'am, we So can you do can one forward it to thing. me. Yes. You please send it to me, and then we'll share that from here. Right.
Yeah, just try to give me the presenter rights once again. Let me just see. You're already having all the rights because you are the co-host. Okay. You just first you just open your PPT wherever it Yeah, is. yeah, my PPT is open actually. Open My now. PPT. Then you just move on to the Zoom window, and there Yeah, you yeah, can see yeah, yeah. I the think it's share done. option. It's done. Yes, yes, yes. Now it So is there. just, yeah, let me know if you people are able to view my screen. Yes, yes. You are Now, able to now see. you can switch on to the full screen. You can go to the slide share maybe. Yeah, yeah. No, the thing is that that slideshow portion is hidden by this icon of the So, Zooms. so just One press F5. sec. Just press F5 Yeah. and Okay. Okay. Finally, yeah, we're. So my little bit of apologies for the delay today. I got busy with a patient, but as a doctor, see, I am taking the opportunity to share with you the biology of leadership. अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये तो मैनेजमेंट स्कूल में हमने दाखिला लिया है, अब यहाँ पे बायोलॉजी कहाँ से आ गया? तो that is what we will see, that you know how our thought patterns and our brains influence our conduct. And when we talk of leadership ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि एक स्पेसिफिक बंदा एक लीडर बना है, जैसे क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन है या हॉकी टीम का कोई कैप्टन है या किसी कंपनी में कोई सीईओ है या फैमिली में कोई हेड ऑफ द फैमिली है एज के तरीके से, तो वो चीज जो है हम सोचते हैं कि दैट इज लीडरशिप. बट एनी पर्सन कैन बी अ लीडर. Any person who considers about the entire team, about the set of people who are performing a task, that person becomes a leader. और उसी चीज का किस तरह से our behavior impacts that is what I will discuss with you today. I'm going to discuss with you, and that forms the core of any organization. So that is why I've named this presentation as the biology of leadership. उससे पहले थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीडरशिप आखिर है क्या चीज. तो एक सवाल जो किसी भी एजेंडा के बीच में आता है, कोई भी डिस्कशन हम करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस प्लान डेवलप करती है, तो वो वर्ड है व्हाई, क्यों. ठीक है, तो सवाल ये है कि क्यों, व्हाई सम कंपनीज एंड सम इंडिविजुअल्स अचीव very high level of growth and success and others do not. Why some individuals are able to assimilate very large masses of people, हजारों सैकड़ों लोग कुछ लोगों को फॉलो करने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सीन या ये पिक्चर आप सब ने देखा होगा और जानते होंगे. 19 अगस्त 2011 में एक इंसान के बुलावे पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा लोग दशहरा मैदान दिल्ली में इकट्ठे हो गए एक सर्टन एक इंसान को सुनने के लिए. तो जस्ट इस चीज को इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखिए कि क्या ऐसा हुआ. ये तो कोई राजनीतिक दल नहीं था, इसके पीछे काफी डिबेट हुई कि क्या ये राजनीतिक एजेंडा था या नहीं था, लेकिन ये 1 मिलियन लोग जो कि डिफरेंट डाइवर्स सामाजिक एवं इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, इसमें मीडिया के लोग थे, इसमें पत्रकार थे, इसमें किसान थे, इसमें बिजनेसमैन थे, इसमें स्टूडेंट्स थे. क्या ऐसा हुआ कि ये सारे लोग जो है इनको सुनने के लिए इकट्ठे हो गए या इनके बुलावे पे आ गए? हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और जो सॉल्ट मार्च उन्होंने किया था 1917 में, क्यों ऐसा हुआ कि मतलब all classes of people came and followed at his call? ऐसा क्या था इस इंसान में, ऐसा हुआ कि
ऐसा सिचुएशन आता है जब कि एक इंसान के बुलाने पे एक टीम इकट्ठी हो जाती है. व्हाट इज दैट? एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस इज लीडरशिप, लेकिन ये हो क्या रहा है उस चीज को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं आपके सामने एक डायग्राम अभी दिखा रहा हूं जिसमें 3 सर्कल्स बने हुए हैं. बाहरी सर्कल में लिखा है व्हाट, बीच की सर्कल में लिखा है हाउ, और अंदर की सर्कल में लिखा हुआ है व्हाई. ये डायग्राम, अब इंटरैक्टिव सेशन नहीं है, नहीं तो मैं पूछता हूं कि मैं क्या दिखाने की, बॉडी का कौन सा पार्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस डायग्राम में, बिकॉज टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज बायोलॉजी. तो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि बीच में हार्ट है, फिर कहीं कुछ है. ये डायग्राम एक स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे ब्रेन. ठीक है, अब ये कैसे है उसमें मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल की तरफ लेके जाता हूँ. जो हमारा ब्रेन डेवलप होता है, इसके बीचों बीच जो सेंट्रल बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मेडिकल में बेसल ब्रेन कहते हैं उसे, वो पार्ट है जहां पे हमारी डिसीजन मेकिंग होती है. उसके ऊपर सतह एक है जहां पे हमारे इमोशंस हैं, और बाहरी सतह जो ब्रेन की है जहां पे हम कहते हैं जो नियोकॉर्टेक्स है या न्यू ब्रेन है, जो ह्यूमंस में डेवलप हुआ. जैसा कि हम जानते हैं कि एवोल्यूशन में सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आए पानी में, उसके बाद धीरे धीरे वहां से एम्फीबियन लाइफ डेवलप हुआ, फिर मैमल्स बने, और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि एप्स आर देयर हु आर आवर एंसेस्टर्स, और वहां से जाके होमोसेपियंस या ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ. ये डेवलपमेंट हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट से काफी कुछ कोरिलेट करता है. और हमारे ब्रेन का जो सबसे नया पार्ट है जो ह्यूमंस में डेवलप हुआ, दैट इज नियोकॉर्टेक्स. अब उस सर्कल वाले डायग्राम से इसको कोरिलेट करते हैं, तो जो बेसिक डिसीजन मेकिंग हमारे ब्रेन का है कि गर्म चीज को छूने से ही हम हाथ अलग हटा लेते हैं, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द पैलियो ब्रेन या ओल्ड ब्रेन या रेप्टिलियन ब्रेन. ठीक है, उसके ऊपर हमारी जो सतह डेवलप हुई वो इमोशंस की सतह है, विच इज द मिडिल रीजन ऑफ द ब्रेन, दैट इज नोन एज लिम्बिक कॉर्टेक्स, और जो बाहरी सतह है दैट इज नियोकॉर्टेक्स. अब ये फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इस डायग्राम से व्हाई, हाउ एंड व्हाट से कैसे रिलेट होता है, तो उस चीज को मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं. आप इस कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, आपके मन में सवाल आया कि मैं अब आगे अपने करियर में क्या करूं, व्हाट शैल आई डू इन माय करियर, सो लेट मी ऑब्टेन अ मैनेजमेंट डिग्री. दैट इज योर व्हाट. दैट थिंकिंग इज कमिंग फ्रॉम योर रैशनल थिंकिंग. ठीक है, आपका ब्रेन जो हमारे ह्यूमंस में सोशल डेवलपमेंट के साथ डेवलप हुआ है, जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छी आपको जॉब मिले, आप उस अच्छी जॉब में अच्छा अर्न करें, अपनी फैमिली को का केयर कर सकें. और कई लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं बॉम्बे जाके जॉब करूं, या मैं किसी बड़े शहर में जॉब करूं, या मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाऊं. तो ये सब आपका व्हाट है जो आपकी रैशनल थिंकिंग से डेवलप हो रहा है, विच इज द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन. अब ये मैं कैसे करूं ये, तो वो जो है आपने किसी मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला लिया जो जिसका गुड अच्छा रिप्यूट है, जैसे आपका ये इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो कोर सवाल क्या है कि आप आज यहाँ हैं, आप आज ये टॉक सुन रहे हैं, व्हाट इज दैट व्हाई, क्यों आप मैनेजमेंट कोर्स ही फॉलो करेंगे. सो दैट इज द सेंट्रल क्वेश्चन आई थिंक विच कम्स टू योर व्हाई. And that why is possibly that you want to become a leader, you want to become a corporate business person, and you want to lead people, and you want to lead businesses. That is your why. But that is what I think. Each of you should think, each of you should take time and think and talk to yourself and try to answer that question, why are you doing what you are doing? Because that why is what is coming from the same part of your brain, which is the decision making part, and which will be so important in your professional and your personal lives, because that is where you are taking decisions.
अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो ये कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से आपके ब्रेन में जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ऑन द बायोलॉजी ऑफ लीडरशिप। आगे चलते हैं। Now this why is so basic in your decision making part of your brain, and it is the code is coming from that part that you basically believe in creating a good life for yourself and for others, and that is why you have taken the stream of management studies. That belief is coming from your decision making part of your brain, which is the most basic part of your brain, that is known as the reptilian brain or paleocortex. उसी डायग्राम को मैं दोबारा से आपके सामने खोल के ब्रेन का एक इमेज दिखा रहा हूं, सो दैट आप समझ सकें कि ब्रेन में एक्चुअली एक पार्ट है, बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच इज नोन एज रेप्टिलियन ब्रेन, जहां से हम इंस्टिंक्टिव डिसीजंस लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें ये आज संडे है घूमने जाना चाहिए, कहाँ घूमने जाना चाहिए, ये इंसान हमें अच्छा लग रहा है, ये इंसान हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारे डिसीजंस हमारे उस पार्ट ऑफ द ब्रेन से आते हैं और उसके बाद वो फिल्टर होके लिम्बिक ब्रेन में जाते हैं, जहां हम उसमें इमोशंस और फीलिंग्स डालते हैं कि हाँ यार मुझे ये नीले रंग की ड्रेस कमीज ज्यादा पसंद आ रही है, मुझे लाल रंग की ज्यादा पसंद आ रही है, और उसके बाद फिर हम रैशनल थिंकिंग करते हैं, अच्छा क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इस चीज को खरीद सके या इस कॉलेज में एडमिशन ले सकें या इस जगह जा सकें, फिर वो हमारी रैशनल थिंकिंग के साथ में जुड़ जाती है। लेकिन जो मेन जो वाई अराइज होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर अराइज होता है, वो उस रेप्टिलियन ब्रेन से अराइज होता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। हमने रिसेंट में देखा होगा कि टीवी पे एक आदमी कहने के लिए आता है कुछ चीज, अपने मन की बात, लेकिन वो उसके मन की बात कहीं ना कहीं जाके सारे देश की मन की बात हो जाती है। कोई उसको एग्री करता है, कोई उसको डिसएग्री करता है, लेकिन जुड़ हर कोई जाता है उस चीज से। ये क्या है, कहां से ये कैरेक्टरिस्टिक अराइज हो रही है? ये कैरेक्टरिस्टिक अराइज हो रही है उस पार्ट ऑफ द ब्रेन से जहां से की फीलिंग्स अराइज होती हैं, और फाइनली वो चीज हम रैशनलाइज कर लेते हैं, अपनी जिंदगी के साथ जोड़ लेते हैं। अगेन ये वही चीज है लिम्बिक ब्रेन और रिलेटेड टू द नियोकॉर्टेक्स। उस इंसान के का भी इस तरह से आ रहा है फीलिंग्स, जो वो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। कुछ लोग अच्छे से बात कर पाते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये जो नियोकॉर्टेक्स है हमारा, जो बाहरी ब्रेन है, that is basically the part of the brain through which we have developed language. अब हम मंकियों जैसे मंकीज के जैसे हुर या किसी और एनिमल के जैसे ग्राउल हिस नहीं करते हैं। हमने एक बहुत ही रिफाइंड वे ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया है ह्यूमंस ने, which is the speech through which I am able to communicate all these thoughts to you. That is the function of the neocortex. लेकिन वो पार्ट डिसीजन नहीं ले रहा, डिसीजन किसी और ब्रेन के किसी और पार्ट में हो रहा है जिसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, विच इज द लिम्बिक ब्रेन। और आप सोचिए इस चीज को, मैं आपको कह नहीं रहा हूं, आप सोचिए इस चीज को कि ये कैसे होता है कि किसी इंसान को आप टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, और वो आपको इन्फ्लुएंस करने लगता है या लगती है। वो चीज कैसे होती है? वो चीज एक बेसिक पार्ट ऑफ द ब्रेन से अराइज होकर हमारे बिहेवियर में आ जाती है। दैट इज वाई the whole concept. आइए अब इसको फिर थोड़ा सा रिलेट करके आपके सामने वही पहला वाला डायग्राम और दूसरा वाला ब्रेन का डायग्राम लाके रखता हूं कि आपका वाई जो है वो लिम्बिक ब्रेन से अराइज हो रहा है, और आपका व्हाट जो है वो रिफाइंड पार्ट है, वो नियोकॉर्टेक्स से अराइज हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ में या मैनेजमेंट की एरिया में अपना व्हाट सामने रखेंगे, तो आप शायद अगले इंसान से या लोगों से उतना जुड़ नहीं पाएंगे जो कि आप अगर वाई को एड्रेस करेंगे तो आप जितना जुड़ पाएंगे। तो हम किसी भी एग्जाम्पल को लेके ये बात कर सकते हैं कि आज क्या खाना खाया जाए। तो आज हम एक कढ़ाई पनीर या इस तरह का कोई एक मसालेदार डिश खाते हैं, लेकिन और वो हम कैसे खाएंगे? घर पे बना सकते हैं, होटल से ला सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है व्हाई। हो सकता है कि हमारे मन में आज कुछ सेलिब्रेट करने का
ख्याल आ रहा हो जिसके लिए कि हम ऐसा अच्छा खाना खाना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं. You should always understand when you are talking to people, when you are in a meeting, the why concept, why you are sitting in that meeting, why you are meeting the person that you are, or why the person has come to talk to you, the reason behind that. Why I am talking to you today is to orient you towards a behavioral trait which should help you in the management course or in the management program. And just to open up that same diagram to you once again, 75% of our emotions and our feelings and our decision making is coming from that basic part of the brain, which is the limbic brain. Only 25% of those factors which are impacting our decisions like speech and rationalization are coming from the neocortex. इसका ये मतलब है कि 75% डिसीजंस हमारे वो होते हैं जिसमें कि हम कोई रैशनलाइजेशन करते ही नहीं है, जो कि हमारे बेसिक इमोशंस या जो हमारे बिना बात किए हुए हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स से डिसीजंस हो जाता है. जैसे कि जब आपने मेरी फोटो देखी होगी, आपने कुछ एक अपने दिमाग में ही बिना मेरी बात सुने एक आपने पैटर्न बना लिया होगा. वो कहाँ से आया? वो आपका लिम्बिक ब्रेन से आया. और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब हम कोई मैनेजमेंट की चीज कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो अब हम इसके नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ते हैं. टीम्स तब प्रोडक्टिव होती हैं जब वो अपने वाई से जुड़ी हुई, जब वो एक कॉमन बिलीफ से जुड़ी हुई. ये फंडामेंटल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंट्री का, एक परिवार का, और उन सभी लोगों का जो एक सिंगल चीज में बिलीफ रखती है. रिलीजन का भी हो सकता है ये बेसिस रहे. आप में से किसी ने इस इंसान का नाम सुना है, सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली? शायद नहीं. लेकिन ये दो भाई जिनको कॉमनली राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, ओलिवर एंड विल्बर राइट, इनका नाम आप में से हो सकता है सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जनरल नॉलेज की बुक में या कहीं ना कहीं सुना हुआ हो. इन्होंने इन्वेंशन किया था एरोप्लेन का. अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं. सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली का नाम हम कोई नहीं जानते. जैसा कि फोटो से दिख रहा है कि ये काफी औहदे दुरुस्त और मतलब एक्लेम्ड एक रिच आदमी का लुक दे रहे हैं. अच्छी सी सूट इन्होंने पहनी हुई है, बड़ा पोज मार के इन्होंने फोटो खिंचवाया है. सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली और ओलिवर और विल्बर राइट एक ही दौर में, एक ही साल में इनफैक्ट सेम चीज का इजाद करने की कोशिश कर रहे थे, एक उड़न खटोला. सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली को अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका के उस दौर के लेट 1800s अर्ली 1900s के सारे बिजनेस हाउसेस ने पैसा दिया था. उनके पास बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट्स थे जो एरोडायनामिक्स के विषय में जानते थे, और सारे न्यूज़पेपर्स हर हफ्ते उनका इंटरव्यू लेते थे. फिर भी हम आज उनका नाम भी नहीं जानते. मैंने भी उनका नाम किसी से सुना है जिन्होंने ये एग्जाम्पल दिया. और हम में से सब ओलिवर और विल्बर राइट के बारे में जानते हैं, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने ये पहला प्लेन उड़ाया था. क्यों, क्या ऐसा हुआ? इस इंसान के पास, सैमुअल के पास सारा पैसा था, सारा कंट्री का सपोर्ट था, और वो उस चीज का इजाद नहीं कर पाए. जबकि ये दो भाइयों ने जो एक्चुअली साइकिल का बिजनेस करते थे, इनका फैमिली बिजनेस साइकिल का था, लेकिन इनके पास इनका वो वाई बड़ा क्लियर था कि इनको हवा में बैठ के पूरी दुनिया को, हर इंसान को हवा में बैठ के उड़ने का एक मशीन देनी थी. वो वाई इनके पास बड़ा क्लियर था. इनका बिजनेस प्लान नहीं था जो सैमुअल के पास था, लेकिन इनका वाई बड़ा क्लियर था. तो ये एक एग्जाम्पल है जो कई सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में दिया जाता है, टू क्लियर योर वाई. And it is those people who believe in their why that makes all the difference. ये एक और मार्केटिंग का लॉ है जो आप शायद अपने कोर्स में पढ़ेंगे. इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन.
जो ग्राफ ये आप देख रहे हैं इसे सिग्मोइड ग्राफ भी कहा जाता है, हाइपरबॉलिक ग्राफ भी कहा जाता है, और ये कस्टमर्स का ग्राफ। इसमें लेफ्ट से राइट से लेके लेफ्ट तक देखेंगे आप, कुछ कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज: लैगार्ड्स, लेट मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी, अर्ली अडॉप्टर्स एंड इनोवेटर्स। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब सबसे पहले मोबाइल फोन लॉन्च हुआ या स्मार्टफोन लॉन्च हुआ या टीवी लॉन्च हुआ, उसको जो सबसे पहले खरीदने वाले लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड इनोवेटर्स, हु रफली कॉम्प्राइज ओनली 2.5% ऑफ द होल मार्केट। इसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं जो करीब 13.5% को ऑक्यूपाई करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी होती है, दोनों को मिला के रफली अराउंड 68% कंप्राइज होता है। और बाद में वो लोग होते हैं जो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बाकी लोगों ने तो खरीद ही लिया है, चलो हम भी ले ही लेते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है, जो चीज मार्केट के बहुत ही डीप रिसर्च में सालों साल रिसर्च के बाद आया, कि एक ये टिपिंग पॉइंट होता है जो करीब करीब 16% पे जाके आता है। जब मार्केट में 16% का एडॉप्शन हो जाता है, तब ये टिपिंग पॉइंट आता है जबकि मेजॉरिटी लोग उस चीज को खरीद लेते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इस टिपिंग पॉइंट को पहुंचने के लिए आपको पूरे मार्केट के 100% को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर उस इनिशियल 16% लोगों को टारगेट कर लिया, या उन लोगों ने आपका प्रोडक्ट अडॉप्ट कर लिया, तो आप पूरे मार्केट पे छा जाओ। वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं अर्ली अडॉप्टर्स एंड इनोवेटर्स। That is why any new product which is launched in the market, it is launched keeping in mind these people who will look at your technology and who will take your product. Once that 16% of the market takes it, you will sell your product to the rest of the world. And those initial adopters are those who sync with your belief, जो वही मानते हैं जो आप मानते हैं, जिनका why और आपका why सेम। ये एक लैपटॉप कंप्यूटर है एक कंपनी का, जो काफी बड़ी कंपनी है, IBM कंपनी, और किसी ने उसके ऊपर तमाम दुनिया भर के फूल पत्तियों के स्टिकर लगा रखे हैं। क्या वो उस कंपनी की ब्रांड में बिलीव करते हैं, या वो उस लैपटॉप को एक मशीन की तरह यूज करते हैं जिससे उनका काम होना चाहिए, और हो सकता है वो डेकोरेटिव हो, वो लड़की या वो जो जिसका ये लैपटॉप हो, उसने बड़े अच्छे से अपने लैपटॉप को सजाया हुआ है। ये फोटो मैंने एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए ली थी, मेरे सामने रखी हुई थी। मैंने आज तक इस लैपटॉप के ऊपर स्टिकर चिपकाया हुआ नहीं देखा। क्यों लोग उसका आधा खाया हुआ एप्पल ही दिखाना चाहते हैं जो उस लैपटॉप को दिखाते हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी में, और उसकी टेक्नोलॉजी उनका खुद का लोगो बन जाता है। तो वो चाहते हैं कि लोग सिर्फ वही देखें कि वो एप्पल के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। दिस इज ब्रांडिंग, this is marketing, and this arises from when you are able to sync with the why of your customer. आपको मैं थोड़े और एडवर्टोरियल कैंपेन्स दिखाता हूं। आप में से कई लोग फिटनेस के फ्रीक्स होंगे, जिम जाते होंगे। तलवलकर जिम एक चेन है फिटनेस का, जो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। ये उनका वेब पेज है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे उन्होंने लिखा है कि प्राउड टू बी एसोसिएटेड with Talwalkars and Multiply India's, ये उनका फ्रेंचाइजी ब्रांड है बेसिकली, Multiply India's फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम। इनफैक्ट इसको देख के आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, एक्सेप्ट फॉर डंबल्स के, कि ये एक फिटनेस ब्रांड है। ये कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो जिस मेन फंक्शन के लिए वो ब्रांड है वो दिख ही नहीं रहा है, विच इज फिटनेस। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन 3 सर्कल्स में? व्हाट, हाउ, व्हाई। मेरे ख्याल से आप सभी सोच रहे होंगे कि ये उस व्हाट पे, क्योंकि ये यही कह रहे हैं कि हमारे ब्रांड से जुड़ करके इसके वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम से इस वेलनेस को और आगे बढ़ाइए। सो दे आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ देयर व्हाट। ये एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, मैं भी डायग्नोस्टिक बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल को लेना ठीक समझा। यूएस की सबसे बड़ी अमेरिका की डायग्नोस्टिक ब्रांड है, और आप देख रहे होंगे इनकी डायग्नोस्टिक लैब एक फैक्ट्री से कम नहीं लगती।
बहुत ही बड़ी डायग्नोस्टिक ब्रांड है, इतनी बड़ी डायग्नोस्टिक ब्रांड है कि ये एक जगह से दूसरे जगह पेशेंट के सैंपल्स को ले जाने के लिए अपने खुद के प्लेन का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते होंगे ये कितने कैश रिच और कितनी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने इंडिया में भी अपना बिजनेस शुरू किया आज से करीब 15 साल पहले, क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स इंडिया करके, जो 2 साल पहले बिक गई। किसी और डायग्नोस्टिक कंपनी ने उसको खरीद ली। ये समझ सकते हैं हम कि हो सकता है उन्होंने अपना डायग्नोस्टिक ब्रांड ऑब्वियसली इंडिया में उस तरह से एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए, इंडिया के लोगों के साथ वो अपने वाई को जोड़ ही नहीं पाए, जिसलिए कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस बिजनेस को अब यहाँ से खत्म करके हम अमेरिका के बिजनेस में ही ध्यान देते हैं। They were not able to connect their why with the Indian customer. This is another popular hospital brand. मैं ज्यादा आपको हॉस्पिटल्स का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ, but I am sure you can relate this to many other brands. And this is Fortis Hospital. इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके कितने ब्रांचेस हैं, कितने बेड्स हैं, कितने डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, किन किन स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों हैं जो वो कर रहे हैं, क्यों, वाई दे आर अ हॉस्पिटल ब्रांड? दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ देयर वाई, दे आर जस्ट टॉकिंग ऑफ देयर somehow फिर अभी मेरा दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर व्हाट। क्या इनके साथ कोई मरीज एक इमोशनल तौर पे जुड़ पाएगा? जब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी, क्या आप ये सोचेंगे कि हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सबसे बेस्ट है इसीलिए हम वहां जाना चाहेंगे, या वो ही करीबी है, या किसी ने बोला है कि वहां चले जाओ इसीलिए जाएंगे? सो यू हैव टू थिंक व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड, आर यू कनेक्टिंग विद योर कस्टमर बेस? हैव यू एवर मेंशन्ड योर व्हाई? क्यों आप वो काम कर रहे हैं, क्यों आपने हॉस्पिटल बनाया है, या आप सिर्फ व्हाट और हाउ में रुके हुए हैं? ये एक और मल्टीनेशनल हॉस्पिटल का ब्रांड है, आप सबों ने सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटी से ये हार्ट का इलाज करते हैं, टचिंग लाइव्स विद कटिंग एज कार्डियक केयर, और इन्होंने कई सारे बिंदुओं में अपना पॉइंट बताया है। लेकिन इन्होंने जो बताया है वो सिर्फ इनका हाउ है कि वो कैसे करते हैं, कैसे वो कार्डियक केयर देते हैं, कितने उनके एनजीओ स्कैन सेंटर्स हैं, कितने उनके हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं। They are talking about their how. आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से एक ब्रांड डिपिक्शन जो और ये किसने बनाया? ये डॉक्टर्स ने नहीं बनाया, ये उनके मार्केटिंग टीम्स ने बनाया है, ये मैनेजर्स ने बनाया है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में जाएंगे। मैं एक बार पूछना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स से कि कितना समय और है। Sir, you can take your time. ओके, मैं जल्दी, थोड़ा बहुत ज्यादा इसको नहीं वो करूंगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आर गेटिंग द फ्लेयर ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट व्हेन यू बिकम कॉर्पोरेट मैनेजर्स, you must always keep in mind why you are doing what you are doing. इस एग्जाम्पल को खत्म करता हूं यहाँ पे। दिस इज वन कैंसर हॉस्पिटल विच इज वर्ल्ड्स बेस्ट कैंसर सेंटर। इट इज कॉल्ड MD एंडरसन कैंसर सेंटर। और इनका जो इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कई सारी इनकी स्टडीज वगैरह हैं। जब पेशेंट्स के लिए जो साइट है वहां पे इनका लोगो ही सामने आता है और वो ये दिखाता है MD एंडरसन कैंसर सेंटर, जिसमें कैंसर वर्ड कटा हुआ है। अब इसमें किसी को समझने में दिक्कत नहीं है कि दिस इज अ कैंसर सेंटर जिसका की वाई है मेकिंग कैंसर हिस्ट्री। वो कैंसर को पास्ट की चीज बना देना चाहते हैं, आपके आज में से हटा के वो पीछे कर देना चाहते हैं। कितना क्लियर है ये वाई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे किस तरह से कंपनी की ब्रांड्स और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, विच इज सेंटर्ड अराउंड why an organization is doing what it is doing. I would suggest all of you students to take a moment to think why you are in a management institute, why you have chosen this particular field of your career. When you apply for a job, also think why you want to work in that company where you're going to work. If your why is that you want to work in Delhi, Bombay, or you want to work in Dubai, or you want to work in San Francisco, okay, but be clear of that why.
ये एक पॉलिटिकल पार्टी का पिक्चर है जहां पे कि करीब 15 दलों ने कोशिश करी आके एक साथ एक महागठबंधन बना के एक कंट्री के सामने उन्होंने उन्होंने कहा कि वी हैव अ प्लान, हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि वो क्यों साथ में आ गए। और देश के सभी लोगों को ये क्लियर पता था कि वो साथ में सिर्फ एक कुर्सी के लिए आए हैं और कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने ये कहा कि उनका प्लान क्या है, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो किस चीज में बिलीव करते हैं, उनका बिलीफ क्या है। और लाख कोशिशों के बाद भी ये सारे लोग हार गए उस गद्दी को लेने में, क्योंकि इनका जो कोर एजेंडा था, वाय था, वो लोगों के सामने कह ही नहीं पाते थे कि ये हमारा वाय जो है वो उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना है, और कुछ वाय है ही नहीं। तो इस चीज के लिए ये जनता समझ जाती है, हर कोई इंसान समझ जाता है। जब एक मैनेजर, मैं अगर एक कंपनी का सीईओ बन के अपने लोगों को कहूं कि अरे आप लोगों को अपना टारगेट हासिल करना है, वो बड़े क्लियरली समझ जाएंगे कि उनका टारगेट हासिल होगा तो मेरा टारगेट हासिल हो जाएगा और मुझे उसका इंसेंटिव मिल जाएगा। अब हम धीरे धीरे उस लेवल पे आ गए हैं कि अब हम लीडरशिप के बारे में बात करें। आपको समझ आ गया होगा कि डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड हाउ पीपल परसीव दोज डिसीजंस, ये किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इंसान उस डिसीजन को लेता है। सो एक लीडर वो होता है जो असली मायने में ये नहीं कहता कि आई एम इन चार्ज, वो ये कहता है कि आई एम इन चार्ज ऑफ ऑल दोज अदर पीपल, आई एम इन चार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दोज हु आर इन माई चार्ज। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लीडरशिप। आज आप एक मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यू आर टुगेदर इन अ ग्रुप स्टडिंग हैप्पीली। टुमारो you people will become leaders when you will say that I am in charge of those who are in my charge. And that skill of leadership again will come when all those people will have the same why, or will understand why you are doing what you are doing. बात करते हैं आज के दौर में जो कॉर्पोरेट्स में कल्चर डेवलप हो रहा है। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब रिलेट कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट कल्चर आज की डेवलप, आपको एक टास्क दिया जाता है और आप उस टास्क को लेके एक थॉट प्रोसेस चालू करते हैं, जिसमें आपके पास कई सारी वरीज आती हैं, कई सारे आपके पास चैलेंजेस आते हैं। क्यों, किस तरह से ये चैलेंजेस आते हैं और क्यों किस तरह से आपका बिहेवियर इसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, और इसका लीडरशिप से क्या लेना देना है, वो फिर मैं आपको वही ब्रेन के फंक्शन के एग्जाम्पल से और उसको थोड़ा और समझा के मैं आपसे शेयर करूंगा। ये पिक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में नया एम्प्लॉय आता है, उसका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसे उसकी डेस्क कुर्सी दी जाती है। वो अगर अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि आप जा सकते हैं इस पोजीशन को छोड़ करके। सो हायर एंड फायर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट। इज दैट लीडरशिप? वो आदमी जो उसको हाथ दिखा रहा है कि ये तुम्हारी कुर्सी है, और वो आदमी जो उसे कह रहा है कि तुम जाओ, तुमने टारगेट नहीं अपना अचीव किया, यही लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है या और भी कुछ है? इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक और टीम है, ये एक और कंपनी है जहां पे ये सारे लोग जो हैं ये भी कोलीग्स हैं, ये भी इस कंपनी में काम करते हैं, और हम सब जानते हैं कि ये भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स का पिक्चर है। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? मेरे एक बहुत ही क्लोज परिचित हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में हैं, तो मैं उनके साथ थोड़े दिन पहले बात कर रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था कि यार क्या ऐसा होता है कि तुम हवाई जहाज लेके जैसे कभी कॉम्बैट होता है तो तुम अपने कलीग को बचाने के लिए पहुंच जाते हो, या जो तुम्हें तो पता है कि चांसेस हैं कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए, क्यों तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो उस अपने कोलीग के प्लेन को बचाने के लिए जब कॉम्बैट में कभी फंस जाते हो? अब आप देख रहे होंगे ये भी एक कंपनी है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है इंडियन वायुसेना। इसके ये एम्प्लॉइज हैं, इसमें भी मैनेजर्स हैं, इसमें भी सबऑर्डिनेट्स हैं,
और इस सिचुएशन में भी मैनेजर है और सबऑर्डिनेट्स है। क्या डिफरेंस है? मैंने बोला कि क्या तुम मैं अपनी नौकरी जोखिम में नहीं डालता हूं दूसरे आदमी के लिए, तुम अपनी जान जोखिम में डाल देते हो, क्यों? वाई? उसका आंसर बड़ा ही आप लोग सोच रहे होंगे। अभी इंटरेक्टिव सेशन होता तो मैं आप लोगों से पूछता कि आपका वाई क्या है, क्यों आप करते हैं ऐसा, व्हाट इज योर वाई? उसका आंसर बड़ा सिंपल था, एक सेंटेंस में उसने कहा, क्योंकि वो भी यही करता। The clarity of that why is very, very clear, because my colleague, my sub commander will also do the same if I am trapped. That is why I am also doing it. तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल होता है। जब आप अपने वाई का आंसर आपके पास होता है तब आपको अपने डिसीजंस लेना बहुत सिंपल हो जाता है। इस चीज को हम एक ब्रेन के फंक्शन से भी समझेंगे, जो कि बहुत ही कोर बेसिक फंक्शन है। और अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आपके सवाल जवाब के लिए मैं टाइम रखूंगा। ये 4 हॉर्मोन्स हैं, एक 5वां भी है जिसे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये 4 हॉर्मोन्स का नाम EDSO से शुरू होता है। तो जस्ट आप एड्सो याद रखो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि वो हॉर्मोन्स क्या क्या है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जब आप एक अच्छी रन करते हैं कहीं पे, या ट्रैकिंग पे आप में से कोई एक अगर गए हो, आपको कभी ये सब करने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खुश फील करते हैं आप, यू फील हैप्पी। दैट हैप्पीनेस आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल लेबर, आप टायर्ड भी फील करते हैं लेकिन आपके मन में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है जब आप जिम में अपना वर्कआउट करके या एक रन करके आते हैं आप। That is because of a hormone called endorphin। और ये ब्रेन स्कैन की इमेज है जो दिखा रही है कि एंडोर्फिन्स ट्रिगर हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं जब आप ये फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। और ये एंडोर्फिन्स को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, ये सेंस ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल पेन किलर, ये हमारी बॉडी में हो रही पेन को सबड्यू कर देते हैं। इसको मैं एक आपके एक एग्जांपल, और ये बायोलॉजिकल है, ठीक है? तो हम अब मैं अब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को, लीडरशिप और बायोलॉजी, जो कि इस टॉक का टाइटल था। ये एक पिक्चर है जो आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, जो कि पहले जमाने के जो हंटर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा किल किया, हंट किया इस चीज को। ये दिनों तक, वीक्स तक ये ग्रुप्स जो हैं हंटिंग के लिए घूमते रहते थे जंगलों में, पहाड़ों में, और उसके बाद जाके इनको हंट होता था। तब तक खाने को भी नहीं मिलता था। क्या चीज है इनकी बॉडी में जो इनको ये कहती रहती थी कि चलो, चलते रहो, बाद में चल के जब वो रिवॉर्ड सेंटर मिलेगा तब जाके आपको अपना हंट मिल जाएगा। दैट इज द एंडोर्फिन व्हिच कीप्स अस गोइंग। और जब वो रिवॉर्ड मिल जाता है हंट के बाद, तब एक ये ब्रेन में हमारे रिवॉर्ड सेंटर है जहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि अब वो ई का खेल खत्म हो गया, अब डी का खेल शुरू हुआ, डोपामीन। ये डोपामीन जो है ये रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को, और हमें फील कराता है मिल गया जो चीज मिलने वाली थी। लेकिन ये हार्मोन हाईली एडिक्टिव है। ये हार्मोन ब्रेन कोशिश करता है डोपामीन को पाने की, क्योंकि ये सेंटर बहुत एडिक्टिव सेंटर है। और एक कॉमन एग्जांपल आप बता सकते हैं जिससे कि हमारे ब्रेन में डोपामीन स्टिमुलेट होता है और हम कहीं से उस एडिक्शन में मतलब वो हो जाते हैं। यहाँ पे नाम मैंने लिखा है कुछ कॉमन एडिक्टिव्स का, अल्कोहल, हेरोइन, कोकेन, निकोटीन, जो कि चाय कॉफी में भी प्रेजेंट है। ये सभी अल्टीमेटली उस डोपामिनिक सेंटर को स्टिमुलेट कर रही हैं ब्रेन की। हम फेसबुक पे अपनी पिक्चर डालते हैं और लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, ये सब के लिए वेट करते हैं। इट इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम स्टिमुलेशन। वीडियो गेम्स खेलते हैं जब हम मोबाइल पे, द सेम सेंटर इन द ब्रेन इज बीइंग स्टिमुलेटेड व्हिच इज बाय अदर एडिक्टिव सेंटर, जो कि डोपामिनर्जिक स्टिमुलस कहलाता है। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में आप आगे सोच सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस पिक्चर की, जो हम में से कई लोगों ने देखा होगा जब इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। वहां पे टीम थी, वहां पे स्टेडियम में लोग थे जिन्होंने मैच देखा, और सेम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन हम लोगों ने अपने घरों में टीवी के सामने भी महसूस किया। क्या ऐसा हुआ कि हमने तो डायरेक्टली ना वो गेम खेला और ना हम उस स्टेडियम में थे,
फिर भी हमने उसी सेंस ऑफ जुबिलेशन का हम अपनी कुर्सियों से उसी तरह से उछल पड़े थे जो कि इन प्लेयर्स ने खुद जिस तरह से उछले थे। ऐसा क्या हुआ? क्या ये हमारे ब्रेन का कोई स्टिमुलेशन है जिसमें, मैं देख रहा हूं अजय जी कुछ पूछना चाहते हैं। अजय, प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन, आई विल गिव टाइम टू टॉक टू यू। ये एक कंपोनेंट है जो कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये बात करते हैं कि थोड़ा उस एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में रखिए। और अब मैं आपसे एक और वो हंटिंग सीन के कोरिलेशन में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये भी एक डायग्राम है। अंदर की सर्कल के अंदर लिखा हुआ है सेफ और बाहर है डेंजर। मान लीजिए बाहर जंगली जानवर है, बाहर खतरनाक सांप है, और अंदर जो है वो सेफ्टी का दायरा है। इस सेफ्टी के दायरे में एक टीम बैठी हुई है। उस टीम में वीक मेंबर्स भी हैं और स्ट्रांग मेंबर्स भी हैं। स्ट्रांग वो लोग हैं जो लड़ सकते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो रात में उठ के लड़ाई कर सकते हैं। और वीक मेंबर वो हैं जो हो सकता है दूर का देख सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं। इस टीम के आप लीडर हैं, आप वीक मेंबर को कहां रखेंगे और स्ट्रांग मेंबर को कहां रखेंगे? बड़ा आसान सवाल। क्या आप वीक मेंबर को बाहर रखेंगे जहां वो डेंजर से मुकाबला नहीं कर सकता जो, और वो आसानी से उसका शिकार हो जाए? यहां पे आता है रोल ऑफ लीडरशिप टू डिसाइड whom you will put at the face of danger. स्ट्रांग मेंबर जो तैनात है, केपेबल है उस चीज से निपटने के लिए, उसे शायद आप डेंजर के फेस में रखेंगे, जिसमें कि आप खुद हो एज अ लीडर, और जो वीक मेंबर्स हैं उन्हें आप सेफ्टी के दायरे में रखेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। अब ये क्यों, कैसे ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। वापस चलते हैं उस रिवॉर्ड सेंटर और उस जो हमारा, जब इंडिया टीम जीती तो हमें जो फीलिंग महसूस हुई, और ये सारे न्यूरो इमेजिंग से, स्टडीज से पता लगाई गई हैं कि ये कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन के अंदर। इस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। जब आप एमबीए की डिग्री लेंगे तब पीछे बैठी हुई जो आपकी फैमिली है, या जो आपके पेरेंट्स हैं, या जो आपके छोटे भाई हैं, वो उसी जुबिलेशन का आनंद लेंगे जो आप ले रहे हैं। उन्होंने तो एमबीए की क्लास नहीं अटेंड करी, उन्हें तो डिग्री नहीं मिली, उनके ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा है जो उन्हें उस सेंस ऑफ जीत का एहसास दिला रहा है? दैट इज द सेरोटोनिन सेंटर। जब आप एक लीडर बनेंगे, आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि आपकी टीम आपके सक्सेस को उसी इंटेंसिटी के साथ महसूस करे अगर आप उनसे अपना रिवॉर्ड शेयर करेंगे। अगर वो आपका रिवॉर्ड शेयर करेंगे, वो आपका रिवॉर्ड कैसे से शेयर करेंगे? आपका इंसेंटिव तो आप उन्हें दे नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका वाई और उनका वाई सेम होगा, तब जब आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तब उनके ब्रेन में भी सेरोटोनिन का सर्ज आएगा और वो आपको एज अ लीडर महसूस करेंगे। कभी आप कुछ बुजुर्गों के साथ या कुछ प्रोफेसर्स के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ जा रहे हो, सामने एक बंद दरवाजा हो, जल्दी से आगे जाके आपने वो दरवाजा खोल दिया, ऐसा आपने अगर किया हो, क्यों? क्योंकि आपने उसको एज अ लीडर रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने उस इंसान को एज अ लीडर रिकॉग्नाइज कर लिया। हो सकता है वो आपके पिताजी हो सकता है आपके चाचा हो, मामा हो, दादा हो, या हो सकता है आपके प्रोफेसर हो, या हो सकता है कोई फिल्म स्टार हो, कोई सेलिब्रिटी हो। ये जब आप करते हैं मीन्स आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ लीडर, आपके ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, इसीलिए ब्रेन क्विकली जाके आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है कि अब आप एक ऐसा एक्शन लें, एक स्टेप लें। इसीलिए अल्फा मेल या अल्फा लीडर को, अल्फा पर्सनैलिटी को कहते हैं वो जिसमें हाई सेरोटोनिन लेवल है, जो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाता है। अब आप वापस चले जाइए, सोचिए उस पिक्चर को जो मैंने अन्ना हजारे या महात्मा गांधी का आपको दिखाया था। These were people who were able to stimulate that serotonin in millions and millions of people and make them come and do the work which they want to, because they are able to communicate their why very clearly to so many people. लास्ट में एक और हार्मोन की बात करूंगा जो है ऑक्सीटोसिन।
ये हार्मोन वो होता है जो ब्रेन से रिलीज होके बॉडी की सभी कोशिकाओं में या सेल्स में आके उनको सिकुड़न करता है, उसमें उसको सिकुड़ के उसमें से जो उसके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उसको बाहर रिलीज कर देता है, स्पंज बना देता है ये बॉडी के सेल्स को, ऑक्सीटोसिन। कई सारे फंक्शंस मैंने यहाँ दिखाए हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। एक कॉमन फंक्शन ऑक्सीटोसिन का होता है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है अपना, तब उसके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है उसे। जब वो उसे दर्द भी होता है लेकिन उसे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है इस हार्मोन के थ्रू। ये भी एक लीडरशिप हार्मोन है जो कि लीडर्स अपने अंदर फील करते हैं एज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। एक और चीज से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो है टच। जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, ये दो कार्टून डायग्राम्स हैं, दो दोस्त अपने को हाय बोल रहे हैं और ये एक्चुअल साइंटिफिक स्टडी करी गई है। उनमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा, ये 3 आप नीचे बार्स देख रहे होंगे, उनमें 1 बार जितना ऑक्सीटोसिन है। जबकि जब एक दूसरे इंसान गले मिलते हैं एक दूसरे से, तब उनमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे कई बार हम मेडिकल टर्म में इश्किया हार्मोन भी कहते हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन कहलाता है। आपने कभी देखा है लीडरशिप में इस हार्मोन का यूज करते हुए? एक और आपको पिक्चर दिखाऊंगा। आजकल के कुछ बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं जो हाथ मिलाते हैं, छोड़ते ही नहीं है एक दूसरे का हाथ, गले मिलाते हैं। They know that there is oxytocin stimulation which will happen by touch, और वो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन करके उसके बाद अगला आदमी उस पेपर पे साइन कर देगा जिसे 1 साल की मीटिंग भी नहीं करा सकते। This is what leadership is, and this is why you have to know how your brain is functioning and how that hormone is impacting your and the other person's decision making. That is the power and that is the utility of management. एक बॉस सामने से आता है और आज का हो गया काम, आज की एक्सेल शीट बन गई, प्रोजेक्ट अलाइनमेंट हो गया, या आया हाथ मिलाया और उसको बोला कि और घर में सब क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट। आप सोच सकते हैं किसको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। This leadership skill is knowing that the biology is working to get the productivity out of the people. Emails are a very common part of today's communications, corporate communications. Everything is documented in the form of emails. कल आके मुझसे 10 बजे मिलना goes as a WhatsApp message or as an email. Does it have a physical contact? Does it have emotions? Emotions नहीं है वो बात अलग है, बट उससे ऑक्सीटोसिन सर्ज होगा क्या किसी का? कतई नहीं होगा। कई सारे पब्लिकेशंस हैं जो ऑक्सीटोसिन के बेनिफिट्स के बारे में बताती हैं, which actually say that oxytocin is also preventive for cancer, जैसी बीमारियों से भी ऑक्सीटोसिन के प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। तो ये पब्लिकेशंस हैं, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। एड्सो का काम हो गया। अब लास्ट स्लाइड में मैं आपको एक और हार्मोन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कहलाता है स्ट्रेस हार्मोन। थोड़ा ऑडियो डिस्टरबेंस है, 1 मिनट। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। ये वो हार्मोन है जो बॉडी में, जब हम शेर के सामने खड़े होते हैं या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम बॉडी से जो हार्मोन निकलता है, इसके कई सारे प्रोटेक्टिव एक्शंस भी हैं, बट जो ये फंक्शंस ये करता है वो सारे चीजें हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन कॉज कराता है, भूख महसूस कराता है, स्टमक में एसिड रिलीज कराता है, स्लीप को हटा देता है, क्रॉनिक फटीग का एहसास कराता है, इम्यून को सप्रेस कर देता है। ये सारे फंक्शंस कॉर्टिसोल के। अब ये कॉर्टिसोल रिलीज कब होता है? जब आप अपने इंस्टीट्यूट में या अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और सामने खड़ा हुआ बॉस कहता है 10 साढ़े 10 बजे आने का टाइम है, वो ये नहीं पूछता कि आप क्यों लेट हो गए, तब आपके ब्रेन से तुरंत आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और ये हार्मोन अगर रोज आप किसी का रिलीज करवाएं या कोई आपका रिलीज करवाएं, तो आपकी बॉडी में ये काले चक्कर में जो बने हुए सारी चीजें हैं वो डेवलप हो जाएंगी।
क्या आप चाहेंगे कि आप ऐसे लीडर बने जिसकी टीम में इन सब मरीजों के, इन सब रोगों के मरीज हों, या आप चाहेंगे कि आप वो लीडर हों जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता हो? ये डिसीजन आपका है। तो मुझे लगता है कि आपने समझा होगा अब मैंने क्यों इस टॉक का नाम बायोलॉजी ऑफ लीडरशिप रखा। एंड लीडरशिप डेवलपमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। तो दैट वाज माय डिस्कशन टुडे। अब अगर आप लोगों के कुछ सवाल हों तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ओवर टू यू मैडम अगाशे। Yes, thank you so much, sir. And frankly speaking, the biology of leadership is something that I've never heard of and is an unspoken topic but of utmost relevance. अगर हम अपने ही मैंने कुछ दिनों पहले एक इंटरेक्शन सेशन में हम लोगों ने बात की थी, इसी बारे में डिस्कशन किया था कि why self management is most important as of now for a student. और आज जो आपने उसका बायोलॉजिकल एंगल दिया है कि आप किस तरह से हैप्पीनेस फैक्टर स्प्रेड कर सकते हैं जिसके थ्रू कि आप पॉजिटिव लीडरशिप को डेवलप कर सके, ये एक नया पहलू है जिसमें बच्चों को आज नए तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। कॉर्टिसोल्स की बात की आपने कि किस तरह से दुर्व्यवहार किसी की स्वास्थ्य पे असर कर सकता है, और ऑक्सीटोसिन जो कि एक वार्म बिहेवियर है, वार्म फिजिकल कांटेक्ट है या फिर फ्रेंडशिप या हार्मोनियस रिलेशनशिप है, वो किस तरह से पॉजिटिवली आपके एनवायरनमेंट को और आपको खुद को प्रमोट कर सकता है, हेल्दी कर सकता है, प्रोडक्टिव कर सकता है। इसके बारे में वी लर्न। वी आल्सो अंडरस्टूड very nicely about the why, how and what element of our brain, and there is no doubt about it. In case students you have any question regarding today's session, आप इसको chat box में लिख सकते हैं। IT team, can we have a chat box open for the participants? Yeah, it is open. It's open. Right. So बच्चों, आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ नया जानना है और कुछ आपके अंदर डाउट्स हैं जो आप हमारे गेस्ट स्पीकर के समक्ष रखना चाहते हैं, so you can please put your questions in the chat box. Can they unmute and ask या they can write? क्योंकि कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो एक कोई मॉडरेटर या तो उनका सवाल ले ले। और मेरे ख्याल से आप में से एक जना सवाल लेके अगर पूछे तो फिर then I can respond to that. Yes. Okay. Now this is okay. Right. So I don't. So there are a lot of questions that what we can do is students, आपके जो भी questions है इनको okay. How do we have a control on these hormones? This is a question by Ganesh. If you can answer, sir. I think very good question. Very good question. How do we have a control on the hormones? Very very good question. और देखिए बिहेवियरल या सिचुएशनल एक्टिविटीज से ये हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। और जब हम क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, तब हमारे ब्रेन में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्फिन, डोपामीन एज वेल एज कॉर्टिसोल का स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है। और मैं ज्यादा स्पिरिचुअल साइड में नहीं जाना चाहूंगा, बट वन ऑफ द वेज टू कंट्रोल द हार्मोनल सर्जेस इज, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आके अग्रेसिव भी नहीं होते हैं, या बहुत ज्यादा आप उन्हें कोई बात कहते हैं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, वो अटेंटिवली आपकी बात सुनते हैं, हर चीज को देखते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। इस बिहेवियर को कहा जाता है नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। ये उस लेवल पे आता है जब आप ग्रास्प कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन और आपको पता है कि आपको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है। अब अगर सांप आ गया है सामने तो आपको एकदम से उछल के पीछे जाना है, डंडा उठा के उसको हटाना है, लेकिन आप वहां खड़े नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप वहां
चिल्लाने लगेंगे। अगर आपको किसी मौके पे हेल्प चाहिए तो हाँ, चिल्लाना भी चाहिए, लेकिन इस चीज को कहते हैं रैशनलाइजेशन, जो हमारे नियो कॉर्टेक्स का फंक्शन है। और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें एक बैलेंस क्रिएट करती हैं ब्रेन में। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेशली आप जैसे जो यंग लोग हैं, जो अभी स्कूल से आप कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं, आप लोगों को इसका यूज करना चाहिए, so that you come and you understand that how you can balance that. None of these hormones, एक और क्वेश्चन मैंने देखा, लोगों ने कहा डोपामीन इज गुड और बैड। देखो, अगर ब्रेन को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो उसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ आपसे कहा जाता है कि आप समाज सेवा के लिए काम कीजिए, आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाती। तो नन ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर गुड और बैड, ये सारी हमारी बायोलॉजी का फंक्शन है, सबका एक रोल है, लेकिन उस चीज को अनकंट्रोलेबली इंक्रीज कर देना वो खराब है। डोपामीन, जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के, स्मोकिंग के, वो देयर ब्रेन्स आर डिपेंडेंट ऑन डोपामीन, नथिंग एल्स। उनका ब्रेन काम ही नहीं कर पाता उस डोपामीन के लिए, इसीलिए उन्हें कोशिश करना पड़ता है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने का, क्योंकि उनका ब्रेन डिसीजन ही नहीं ले पाता। आपने देखा होगा कई लोग जो स्मोकर्स होते हैं, वो उनको कभी भी कोई सवाल दो, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, वो कहेंगे रुको पहले मैं थोड़ा सुट्टा मार के आता हूँ बाहर से, उसके बाद ये डिसीजन लूंगा। होता है कि नहीं होता? दैट इज बिकॉज देयर ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन दैट डोपामीन स्टिमुलेशन, उसके बिना वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। इस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको कॉन्स्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। One of the best efforts is to release endorphins in your brain, and endorphins come from physical stimulation. If you do physical activity in the form of running, in the form of working out, that will always, endorphins have a counterproductive effect and they help. I think so that also answers Abhishek's question. He has been asking this question: what triggers the release of cortisol? So which hormone, what releases the cortisol is a stress hormone. cortisol हमारी बॉडी में बनाया गया है बचाव करने के लिए, ठीक है। जब हम हमें चोट लगती है या हम कहीं से गिरने वाले होते हैं, जैसे मान लो एकदम हम सड़क पे चल रहे हैं, एक पत्थर आया और हम जो है टॉपल करके गिरने वाले हैं, दैट इज द टाइम इमीडिएटली बॉडी में 1 मिली सेकेंड के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का सर्ज आता है, रिलीज होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जो हमारी धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनको सिकोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें चोट लगे तो हमारा खून का लॉस ज्यादा नहीं है, ठीक है। दैट इज द पर्पस, बट दैट इज इफ दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय अ स्ट्रेस इफेक्ट, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। It is not made to destroy us. It is made as a protective. हमने उसको गलत मैनेजमेंट से एज अ हार्मफुल इफेक्ट उसका बढ़ा दिया है। जब हम अपने घर में स्ट्रेस का माहौल क्रिएट कर देते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस का माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो लोग वैसे ही वो हो जाते हैं जिस तरह से हम जब गिरने वाले होते हैं तो लोग बंध जाते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल. Now it depends on a leader whether you want to do that in your organization or you want to have people. आप अपने organization में games, हम क्यों schools में ये सब games और इन चीजों का ये करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि endorphins release हो हमारी टीम में, हमारे स्टूडेंट्स में। इनफैक्ट कई स्कूल कॉलेजेस में हम ये भी देखते हैं कि टीचर्स के की प्रतिस्पर्धा भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस फंक्शन में आके सबके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएं, सबके अंदर सेरोटोनिन रिलीज हो जाएं, सब जोश का फील करें। सो ये चीज हमें अपने घर में और ऑर्गेनाइजेशंस में जरूर करनी चाहिए। Yes, thank you so much. I think we have reached the time limit. So there are a few more questions कि cortisol अच्छा है कि नहीं, तो सर ने सच आंसर कर ही दिया है। But I can say one thing कि endorphin release करना है तो clap करना जरूरी है। So a virtual clap to sir. I think this action will help us to release more endorphins in our body and make us more energetic and productive. Students, for the feedback form and certificates, the link is on the chat box. आप इस link पे click करके अपना feedback भी provide कर सकते हैं और register कर सकते हैं for the certificates, right?
So, sir, I think we have reached to the end of session, and thank you so much for your time from your busy schedule. You have taken out time, and you have been, so humbly and in such simple words, you have explained us the biology of leadership. I, on behalf of the Vikrant Group of Institutions, thank you so much for being here today. Thank you once again, all the students. And KD sir, over to you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Surendran Bose. So with this, I guess guest and ma'am, you people can leave, and I'll be discussing the students about the tomorrow's session. So thank you so much. Thank you so much, Dr. Bose. Thank you. So all much. The very best. Stay safe. Thank you. Thank you so much. And thank you, IT team, for making it possible. Thank you. बच्चों एक फीडबैक लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, जल्दी से उसको भर दीजिए, जैसे आप इसको भरेंगे you'll get the certificate. और for tomorrow there will be 2 sessions. The first session will be on Weekend magazine, जो डायरेक्ट आपसे रिलेट करती है, how you can contribute in them, और इसके पुराने एडिशंस भी आपको बहुत बताए जाएंगे. और दूसरा जो सेशन होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, विच इज़ इंजीनियरिंग एजुकेशन. इंजीनियरिंग क्या है और कौन कौन सी होती है, क्या बेनिफिट होता है किस ब्रांच से, ये सब हम लोग कल देखेंगे. सो आज मैं बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ. आई विल बी टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑन टुमारो. So with this, we can end the session. Thank you so much, everyone. We'll meet on tomorrow right at 1:30. Thank you so much, everyone.